السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، افغانستان ایک بہت ہی ڈوبیس کریکٹر ہے جسے سمجھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی تاریخ بھی عجیب و غریب واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ابھی بھی پاکستان کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے چین نے افغانستان کو بٹھایا اور کچھ ایسے معاملات طے کیے جس میں یہ لگ رہا تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن درمیان میں کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ پاکستان پہ اٹیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پاکستان کی فوج کے اوپر ڈائریکٹلی اٹیک ہوتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ شہادتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پاکستان پھر اس کی کمپلین کرتا ہے۔ لیکن افغانستان کہہ ضرور رہا ہے، ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے جو وہ کہنے جا رہے ہیں، لیکن اس پہ عمل کتنا ہوگا؟ واقعی کیا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں؟ پوری سٹوری جانتے ہیں اس چیپٹر میں۔ اب اس میں اس کی ڈیٹیل ہے، ظاہر ماضی ہے اس کا، اور ماضی یہ ہے کہ جو طالبان جب وہاں پہ افغانستان کے اندر گڑبڑ ہوئی تھی اور وہاں پہ مرکز آئے تھے تو طالبان وہاں سے بھاگ کے پاکستان آ گئے اور وہ پاکستان کے مہمان رہے، پاکستان ان کی میزبانی کرتا رہا، اور اس وقت یہاں پہ جو ٹی ٹی پی بعد میں بنی، ان لوگوں کے ان کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، بڑے قریبی تعلقات تھے، کیونکہ دونوں ایک باہر سے آئے تھے، دوسرے یہاں پہ پاکستانی تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے پاکستان سے جو لوگ تھے وہ بھاگ کے افغانستان بھی چلے گئے، وہاں پہ بھی چھپے رہے۔ کچھ ٹرائبس ایسے ہیں جو افغانستان کے اندر بھی ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں، ان کی آپس میں دوستیاں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں۔ تو اگر ٹی ٹی پی کو دیکھا جائے اور ساتھ ساتھ طالبان کو دیکھا جائے تو ان کے آپس میں برادرانہ تعلقات بھی ہیں، ایک دوسرے کے مہمان اور میزبان بھی رہے ہیں، کچھ رشتہ داریاں بھی ان کی ہیں، اور ٹرائبس بھی ان کے ملتے جلتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہاں طالبان کی گورنمنٹ آئی اور یہ جناب باجوہ صاحب کے دور میں آئے تو پاکستان کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہم نے ان کی بڑی حفاظت کی ہے، ہم نے ان کا بڑا خیال رکھا ہے، ہم نے پاکستان کی سرزمین دی ہے ان کو، ان کے یہاں پہ اثاثے ہیں، ان کے یہاں پہ بچے ہیں، ان کے یہاں پہ فیملیز ہیں، اور ان کی جائیدادیں بھی یہاں پہ ہیں، اور ہم نے 20 سال امریکہ کا بہت بڑا پریشر بھی برداشت کیا ہے ان کے لیے۔ تو جب ان کی گورنمنٹ آئے گی تو یہ وہاں سے ٹی ٹی پی کو ختم کر دیں گے یا پھر ان کو نیوٹرلائز کر دیں گے، تو یہ خیال تھا۔ لیکن جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد پاکستان کے اوپر حملے بڑھتے چلے گئے، اور پاکستان کو اس پہ بڑی ریزرویشنز تھی۔ پاکستان نے کہا کہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں اور آپ نے کیوں ہمارے دشمن اپنے پاس پالے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ رکنا چاہیے، اس سلسلے کو روکنا چاہیے۔ لیکن طالبان کبھی دائیں بات کرتے تھے، کبھی بائیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، پھر کہتے تھے جی ہم تو اس میں انوالو بھی نہیں ہے، پھر یہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے اندر سے ہو رہا ہے، افغانستان سے اپریٹ ہی نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ، اس ٹائپ کی بانے بازی ہوتی تھی۔ لیکن پھر پاکستان نے جب زیادہ ڈنڈا چلایا اور ان کو سارے پروف دیے تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں کہ ہمیں کچھ پیسے دے دیں، اور وہ پیسے جو تھے وہ بھی 60-70 ارب روپیہ تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں وہ دے دیں، ہم ان سب کو جو بارڈر کے اضلاع ہیں، جو بارڈر کے صوبے ہیں، یہاں سے ان کو ڈسپلیس کر کے ہم ان کو سینٹر میں لے جاتے ہیں۔ جب یہ دور چلے جائیں گے تو پھر یہ پاکستان کے اندر افیکٹو نہیں ہوں گے، پاکستان کے اندر کاروائیاں نہیں کر سکیں۔ اس وقت پاکستان نے سوچا کہ کوئی بہت زیادہ رقم نہیں ہے پاکستان کی سیکورٹی کے لحاظ سے، تو اس کو یہ رقم دے دی جاتی ہے، لیکن پھر اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی اس کو سمجھایا گیا کہ اگر آج ہم نے یہ پیسے دے دیے تو یہ مستقل پھر ایک قسط دینی پڑے گی ان کو، کیونکہ جب بھی افغانستان کے ساتھ حالات خراب ہوں گے یا افغانستان کو پیسے چاہیے ہوں گے تو ان لوگوں کو وہاں سے یہاں شفٹ کر دیا کریں، بلیک میلنگ شروع ہو جائے، ایک بلیک میلنگ ہوگی۔ تو جب یہ سرحد پہ دوبارہ آ جایا کریں گے تو ہم پھر پیسے دیا کریں گے، پھر یہ پیچھے چلے جائیں گے، تو اس طرح کے 2 گھر بن جائیں گے، ایک بیوی یہاں پہ ہوگی، ایک بیوی ان کے پیچھے ہوگی، تو 14-15 بچے یہاں پہ ہوگے، 14-15 بچے ان کے پیچھے ہوں گے، تو وہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سینٹر میں چلے جائیں گے، جب ادھر سے پریشر آئے گا سینٹر میں چلے جائیں گے، جب پیسے کم ہوں گے وہاں سے یہاں آ جائیں گے، اس بیوی کے پاس یہاں بیٹھ جائیں گے، تو اسے پھر یہ ہمیں بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ اس میں نہ جائیں۔ تو اس پہ پھر پاکستان نے پیسے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں جی آپ ان کو خود ہی فیصلہ کریں اور خود ان کو ایڈجسٹ کریں۔ لیکن پاکستان کے اوپر حملے بڑھتے چلے گئے، پھر چائنیز کے اوپر حملے شروع ہوئے۔ جب چائنیز کے اوپر حملے ہوئے تو چائنیز کے تعلقات تھے طالبان کے ساتھ بہت اچھے، کیونکہ وہاں پہ ایمبیسی بھی ہے چائنا کی اور وہاں پہ ایمبیسڈر بھی ہے، اور بہت سارے معاملات میں طالبان گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا رہا چائنا۔ تو پھر پاکستان نے چائنیز سے بھی کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس سیٹلائٹ ہے، آپ اس میں ٹریک ڈاؤن کر کے دیکھیں کہ کہاں سے لوگ آئے، اور سیٹلائٹ امیجز کے ساتھ جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ واقعی افغانستان کے اندر سے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ یہاں سے یہاں آ رہے ہیں۔ تو پھر چائنیز انوالو ہوئے، پہلے چائنیز خود ان کو سمجھاتے رہے، نہیں معاملہ سنبھلا تو پھر پاکستان اور چائنا اور افغانستان تینوں کے پھر زوما بیٹھے اور وزراء خارجہ بھی بیٹھے۔ اس سے پہلے کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں بڑے خوفناک تھے، پاکستان نے بڑا ریٹیلیٹ کیا، پاکستان نے وہاں پہ سرجیکل اسٹرائک بھی کی، پاکستان نے یہاں سے وہاں ڈرون بھی بھیجے اور وہاں پہ میزائل بھی مارے، بلکہ 1 تو 3 ان کے جو سینٹر تھے وہ سارے کے سارے اڑا دیے، اور بڑا خوفناک قسم کا انسیڈنٹ تھا وہ۔ تو اس سے طالبان کو ٹی ٹی پی کو لگ سمجھ گئی کہ پاکستان تو سیدھا ہو گیا، یہ تو واپس ہی نہیں آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے افغان مہاجرین سے کہا کہ چلو جی اپنا سامان پیک کرو، جاؤ، آپ کے ملک کے اندر تو بڑا امن ہو گیا، وہاں پہ دودھ شہد کی نہریں پہ رہی ہیں، تو آپ اس ملک کو جس کو آپ دارالکفر کہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں، یہاں سے نکلیں آپ، یہ ہمارا ملک ہے۔ تو اس کے بعد وہ مایوس ہو کے ان کو یہاں سے جانا پڑا، اور اس کا بھی بڑا پریشر آیا۔ پھر پاکستان نے یہاں پہ جو بارڈر ٹریڈ تھی اس کے اوپر پابندی لگائی کہ جو وہاں سے اسمگل ہو کے یہاں پاکستان کے اندر مٹیریل آ رہا ہے اور اس سے طالبان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر پاکستان نے ڈالر روکے بہت، جہاں سے کیپٹل فلائٹ ہو رہی تھی افغانستان کے اندر، تو وہ طالبان گورنمنٹ جو ہے نا وہ باقاعدہ ٹائٹ ہو گئی، بہت زیادہ ٹائٹ ہو گئی۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ اگر ہم نے پاکستان کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا تو یہ معاملات بہت خراب ہو جائیں گے ہمارے لیے، اور پاکستان ہماری بقا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر پاکستان ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں۔ دوسرا ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جب مشکل وقت آئے گا، کیونکہ جو ان کی حرکتیں ہیں پھر کسی وقت بھی مشکل وقت آ سکتا ہے، تو اگر مشکل وقت آئے گا تو پھر ہم جائیں گے کہاں، کیونکہ پاکستان ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، تو پاکستان تو اس مرتبہ ہمیں نہیں لے گا۔ شوشا اعلان نے 2.5 لاکھ بندہ ابھی جو ہے نا ڈیپورٹ کیا ہے، ابھی صرف روزانہ 30,000
रोज 30,000 बंदा निकाल रहा है ईरान अफगानों को, रोज 30,000 लोग, और इल्जाम भी है कि जासूसी करके दे रोज जासूसी और वहाँ पे बैगिंग कर रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं और मिसाइल पैदा कर रहे हैं और वहाँ पे मजहबी मनाफरत फैला रहे हैं वगैरह वगैरह। तो बहरहाल उसके बाद फिर चाइना इन्वॉल्व हुआ। चाइना के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही ये जो पाकिस्तान का अभी का इंसिडेंट है ना, जो हमने इंडिया को उसकी नाक रगड़ी है, तो उससे भी सारे लोग डर गए हैं, मसलन तालिबान भी डर गए। उन्होंने कहा इन्होंने इंडिया को नथ डाल दी जिसका $80 बिलियन का दिफाई बजट है और पाकिस्तान के पास $8-10 बिलियन का दिफाई बजट होता है, इन्होंने उसकी बह करवा दी, तो आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या करेंगे। तो उससे भी उनको बड़ा खौफ आया। फिर चाइना को भी महसूस हुआ कि पाकिस्तान को हमें साथ लेके चलना चाहिए, अगर हमने पाकिस्तान को इस तरह छोड़ा तो हमें नुकसान बहुत ज़्यादा है। फिर अमेरिकन के साथ जब पाकिस्तान के तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए तो उससे भी अफगानों को महसूस हुआ कि एक तो पाकिस्तान अफगानों के साथ हमारे तल्लुकात ठीक करवा सकता है, दूसरा ये है कि हमारे लिए सफारतकारी के जो दरवाजे बंद हैं वो खोल सकता है, हमारी इक़्तिसादी पाबंदियां हटवा सकता है, और दूसरा ये अमेरिकन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गया पाकिस्तान, तो ये ना हो कि उधर से टाइट कर दिया जाए हमें अमेरिका की तरफ से भी। तो उस सारी सिनेरियो ने फिर मिल मिला के अफगानों को समझाया कि बेहतर ये है कि ये जो थोड़ी सी अकलियत है जो ना अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम होने दे रही है ना पाकिस्तान के अंदर कायम होना दे रही है, इनको टाइट करना चाहिए। तो फिर एक अकॉर्ड हो गया, एक मुआहदा हो गया, और मुआहदा जो हुआ था वो चाइना के अंदर हुआ जिसमें तीनों बुज़रा खाते थे, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, चाइना के, और चाइना ने पाकिस्तान को गारंटी दी कि अब ये इस मुआहदे से आगे पीछे नहीं होंगे। तो पाकिस्तान मुतमईन हो गया। लेकिन उसके बाद ये इंसिडेंट होने शुरू हो गए पाकिस्तान के अंदर, खौफनाक किस्म के इंसिडेंट होने शुरू हो गए, और इस जंग के दरमियान जो 300 बंदा वहाँ से आ गया था, जिनमें एक ही मरतबा 76 लोगों को पाकिस्तान ने मारा, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बाकी सबको भी मारती है। इस जंग के दरमियान जो वहाँ से TTP की सबसे बड़ी तश्कील हुई थी, उसने भी हलाया चाइना को कि यार ये अफगान तो अपनी बातों पर कायम नहीं रहते, तालिबान ये तो बात करके मुकर जाते हैं। तो चाइना ने उधर से इनके पेच कसने शुरू किए, और इस साइड से पाकिस्तान साथ साथ सीधा हो गया। उसने कहा जी अगर आप ये करेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, फिर हमने छोड़ना कोई नहीं TTP का बंदा वहाँ पे। तो ये सारे हालात देख के अब अफगान गवर्नमेंट को ये महसूस हो रहा है कि ये एक नासूर बन गया हमारे लिए, और अगर हमने इससे जान ना छुड़ाई, इसको ना काटा, तो ये पूरे बदन को खा जाएगा। तो अब ये जो मसलूम का वाकया हुआ कि देखें वहाँ से अफगानिस्तान से लोग आए और वो सपोर्टर थे यहाँ के लोकल लोगों के, और यहाँ पे 3 बैंक उन्होंने कर दिए, एक बैंक जो लूट लिया उसको आग भी लगा दी, वो हुआ। इससे पहले 13 जो फौजी जवान हैं उनको शहीद कर दिया गया और खुद कुछ हमला हुआ उनके ऊपर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अभी चाइनीज़ भी देख रहे हैं, पाकिस्तान भी देख रहा है, तो उससे अब तालिबान को ये फील हुआ है कि अब हम दाएं बाएं नहीं कर सकेंगे मामलात को, हमें ये सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब वो जिस सतह पे गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये मसला 6 महीने से ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होगा। तो आज उन्होंने जो तमाम सूबे जो पाकिस्तान की सरहद पे हैं, चमन से स्टार्ट करके आप चित्राल तक चले जाएँ, तो उसके कंधार आता है, पिक्ती आता है, फिर ये जाबल आता है, और आगे थोड़े चले जाएँ बदख्शां भी आ जाता है, क्योंकि चित्राल के साथ वो भी है ना जी, वाह खान की पट्टी जो बदख्शां के साथ है, और इनसे थोड़े से पीछे सूबे चले जाएं तो कुन्नड़ है, और ये सारे सूबे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके जहाँ पे TTP के लोग मौजूद हैं, और इनके वहाँ पे सेंटर भी हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं। ठीक है। तो वहाँ से फिर अफगान तालिबान जो है, तालिबान गवर्नमेंट है, उन्होंने इनको वार्निंग दे दी है कि आप सब लोग यहाँ से नकल मकानी करें, सेंटर में जाएँ, या फिर आप एक्सट्रीम ईरान की तरफ चले जाए, या फिर ताजिकिस्तान या फिर उज़्बेकिस्तान की तरफ चले जाएं, तो पीछे हटाया जा रहा है उनको। साथ साथ उनको डिसआर्म किया जा रहा है कि अब आप में से कोई शख्स असला कैरी नहीं कर सकेगा, और इनका सारा असला जो उनसे जब्त कर रही है गवर्नमेंट वहाँ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी यहाँ से कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर वो गड़बड़ नहीं करेगा। गुल बहादुर जो है, मुझे लगता है उसके तो पूरे ग्रुप के ऊपर पाबंदी लगने लगी है, और अब इनमें से कोई शख्स अगर गड़बड़ करेगा तो मुझे लगता है कि तालिबान गवर्नमेंट जो है ना उनको नहीं छोड़ेंगे। तो अब इसके अंदर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, चाइना भी इन्वॉल्व है, और साथ तालिबान भी। मुझे लगता है कि इस मरतबा उनकी गवर्नमेंट सीरियस हो गई, ठीक है, और ये सीरियसनेस अब नजर आएगी आपको। और अब अगर उन्होंने BLA को सपोर्ट किया या TTP को सपोर्ट किया या पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ हुई, तो पाकिस्तान ने अब डायरेक्ट हमला शुरू कर देना, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ठीक है। UN के अंदर जो सेंक्शन कमेटी है तालिबान की, उसका भी पाकिस्तान सरबराह है, और डायरेक्टली सेंक्शन भी इन पे लगवा सकता है तालिबान पे अगर ये कोऑपरेट नहीं करते। अब तो देखें ना, दूसरा ये है कि इस्लामिक काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बन गया पाकिस्तान, अब तो बड़ी पावर होगी पाकिस्तान के पास। हाँ जी बिल्कुल, 1 महीने के लिए अब सरबराही भी हमारे पास है माशाल्लाह। पाकिस्तान का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है पाकिस्तान और भारत के हवाले से। एक खबर हमें ये बताती है कि जैसे अमन कायम होना शुरू हो चुका है, और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हमें नजर आ रहा है कि दोनों ने कुछ फहरिस्तों का तबादला किया आपस में। ये फहरिस्तें इस किस्म की हैं कि जिससे ये महसूस होता है कि दोनों मुल्क नहीं चाहते कि ये जंग या मजीद लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है जिससे ये लग रहा है कि शायद वाकई ये लड़ाई कुछ महीनों तक या कुछ अरसे बाद आगे दोबारा शुरू हो सकती है। तो दोनों में से किस बात में ज्यादा वजन है, जानते हैं इस टॉपिक। अब देखिए कि कैदियों का जो तबादला होता है हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, को उधर कहती हैं, कुछ इधर कहती हैं, कुछ मुख्तलिफ जुराइम में गिरफ्तार हैं, कुछ ओवर स्टे कर जाते हैं यहाँ पे या वहाँ पे, कुछ लोग सरहद पार कर जाते हैं गलती से, कुछ लोग स्मगलिंग के लिए सरहद पार कर जाते हैं, वहाँ पकड़े जाते हैं। माहीगीर जो है वो ज़ाहिर पाकिस्तान के पानी और इंडियन के पानी जो है ना बिल्कुल करीब करीब है समुद्रों के अंदर, कश्तियाँ लेके जाते हैं, तो गलती से वो उधर चले जाते हैं, वहाँ से उनकी नेवी गिरफ्तार कर लेती है, कुछ वहाँ से यहाँ आते हैं, पाकिस्तानी नेवी उनको पकड़ लेती है, तो ये जेलों में पड़े रहते हैं, कुछ की सज़ाएँ मुकम्मल हो जाती हैं तो उनको वापस भेज दिया जाता है, कुछ बेगुनाह होते हैं उनको कुछ अर्से बाद वापस कर दिया जाता है। जितने कैदी उनके पास हैं वो दे देते हैं, उतने कैदी हम उनको दे देते हैं। तो ये पुराना एक अरेंजमेंट चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। 2008 के अंदर एक काउंसलर रसाई का एग्रीमेंट भी हुआ था। 2008 में आपको पता है बम्बे अटैक्स वगैरह हुए,
बड़ा खौफनाक किस्म का अटैक हुए, और उसके बाद फिर जब दोनों मुल्कों ने आपस में गुफ्तगू करनी शुरू की तो उसको काउंसलर रिसाई भी हुई कि जो इंडियन काउंसलर है वो इन लोगों से मिलेगा जो हमारे पास हैं कैदी, और जो पाकिस्तानी काउंसलर है वो उनसे मिलेगा जो इंडिया के अंदर पाकिस्तानी कैद हैं। ठीक है। और उनसे मिलकर उनकी लिस्टें बना के उनकी फैमिली को इतला दी जाएगी कि आपका बच्चा या आपका भाई या आपका वालिद महफूज है और फलां जेल में है और ये फलां अरसे इतने अरसे में वो छूट जाएगा। तो जब ये जंग का मौसम हुआ और ये जंग स्टार्ट हुई तो फिर ये राब्ते ख़त्म हो गए, काउंसलर रसाई भी ख़त्म हो गई, साथ कैदियों की फहरिस्तें जो थी उनका तबादला भी नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने कोई 246 इंडियन की फहरिस्त दी है जिसमें 53 आम लोग हैं, आम शहरी हैं जिसमें ओवर स्टे कर गए होंगे या फिर उन्होंने सरहद क्रॉस की होगी, और 193 माहीगीर हैं। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात है, वो कहते हैं 53 आम शहरी हैं और 193 जो माहीगीरों को आम शहरी नहीं है, वो माहीगीर हैं क्योंकि कच्चियों में बैठे हुए थे। वैसे वाकई इस खबर पे एतराज बनता है, इस खबर पे एतराज बनता है कि माहीगीर आपको आम लोग नहीं लगते, आम शहरी नहीं। इंडिया की तरफ से जो फहरिस्त है उसमें 463 पाकिस्तानी हैं जिनमें 382 जो आम शहरी हैं और 81 जो माहीगीर हैं। 81 माहीगीर जो उन्होंने भी यही कहा है कि माहीगीर जो है वो आम शहरी नहीं है, वो माहीगीर है। तो अब इसके बाद इनका तबादला होगा, वहाँ से कुछ कैदी इधर आ जाएंगे, कुछ कैदी उधर से आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पीस है वो प्रवेल हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब ये स्टेप्स जो है ना आगे बढ़ते चले जाएंगे, और उसके बाद ये जो अभी हमने फ्लाइट्स रोकी हुई हैं ये एयर स्पेसेस खुल जाएंगी, इंडिया के जहाज इधर से उड़ जाएंगे, फिर कोई ज़ियारती वीज़े जो है उधर से भी आ जाएंगे, इधर से भी उधर चले जाएंगे, फिर थोड़ी बहुत तजारत जो है ना वो भी स्टार्ट हो जाएगी, और दवाइयों से शुरू होगी तजारत, क्योंकि इंडिया के अंदर अद्वियात का जो मटीरियल होता है ना, जिससे बेसिक मटीरियल जैसे दवाइयाँ बनती हैं वो इंडिया के अंदर बहुत सस्ता है। अच्छा, तो वहाँ से वो पाकिस्तान इतना सस्ता है फिर भी दिमागी अमराज इतनी ज्यादा है उधर, आबादी ज्यादा शुक्र है पेशाब का जिक्र नहीं किया। नहीं वो मैं आगे जाके करता हूँ। ठीक। अच्छा, तो ये है सारा सूरत। तो मुझे लगता है कि जो जिस्मानी सज़ाएं मुकम्मल कर चुके हैं और इसके अलावा बाकी जो हैं सज़ाएं वो, फिर इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक अरेंजमेंट ये भी है कि जो ज़हनी तौर पे माजूर हो गए हैं, जिस्मानी तौर पे माजूर हो गए हैं, ज़रा दूरी की वजह से या टॉर्चर की वजह से उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो उनका तबादला भी होता है हमेशा। ठीक है। तो ये तबादला भी होगा। कुछ लोगों के ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम लगा होता है तो वो ज़ाहिर थोड़ा से ज़रा हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं, उनका तबादला तो नहीं होता, लेकिन उन तक काउंसलर रसाई हो जाती है। तो काउंसलर रसाई भी अब शुरू होने वाली है, तो ये अच्छी बात है सारा। अब यहाँ पे एक खबर जो रह गई है वो मेरा ख्याल है आगे चल के हम बताएंगे कि वो जो मुहर्रम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं खबरें तो हमारे हैं, लेकिन अभी इसका दूसरा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो दूसरा एस्पेक्ट आ रहा है कि जी जंग हो सकती है। कुछ लोग जो है ये बात कर रहे हैं, मतलब ये दो अलग अलग चीजें चल रही हैं, कुछ कहते हैं जंग है, कुछ कहते हैं अमन है। जंग इस वजह से कहते हैं असला खरीद रहा है इंडिया बहुत ज्यादा, मतलब करोड़ों में, और करोड़ों भी, कोई कहता है 1 लाख करोड़ खरीद रहा है, कोई कहता है जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन असला खरीदा जा रहा है। क्यों खरीदा जा रहा है वैसे आपका क्या ख्याल है? मुझे मेरी जाती राय है, मुझे लगता है डिफेंस के लिए। अब क्या पाकिस्तान तैयारी नहीं कर रहा? पाकिस्तान भी तो कर रहा है ना। देखो भाई, ये ना बहुत बड़ा खांचा होता है डिफेंस का हर मुल्क के अंदर। अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे अखराजात होते हैं जो डिफेंस के नाम पे बनाए जाते हैं, इंडिया के अंदर भी, चाइना के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, किसी भी मुल्क का आप नाम लेंगे ना तो ये एक वार इकॉनमी होती है, डिफेंस इकॉनमी होती है, और उसका पहिया चलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन फ़र्ज़ करो कि अगर हम अपने फंड्स रोक देते हैं तो GF थंडर जो है वो उसकी जो पैदावार है वो रुक जाएगी, तो उसका आने वाले दिनों में फ्यूचर में पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि इसको हमने एक्सपोर्ट भी करना है। फिर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है जिसके अंदर असला बनता है, अगर आप उसको मौका नहीं देंगे, उसके ऊपर बजट नहीं लगाएंगे, पैसा नहीं लगाएंगे, तो आपको रेवेन्यू नहीं आएगा। सेम इंडिया जो है ना वो भी एक बड़ा मुल्क है और उसके अंदर खांचे भी पड़े हैं, वो बड़ी बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ हैं जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें एक्सपोर्ट करती हैं, कुछ इंपोर्ट करती हैं, तो वो सारा काम भी वहाँ इंडिया में भी चलता रहता है। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, इसमें कोई शक नहीं कि जो पहले उनका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर 20 से 25 बिलियन डॉलर लगा रहे हैं। तो ये 20 से 25 बिलियन डॉलर जो है ना वो डेफिनेटली डिफेंस के लिए भी है, और डिफेंस के लिए भी सारे दुश्मन पाकिस्तान है उनका सबसे बड़ा, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया पाकिस्तान को, उसके ऊपर वो पैसा तो खर्च करेंगे, लेकिन साथ ही जो लेन देन है, जो किकबैक्स हैं, जो पॉलिटिकल मनूवरिंग है, किसी पार्टी को लाना है इक़्तिदार से, किसी पार्टी को इक़्तिदार से निकालना है, कोई MNAs खरीदने हैं, वहाँ पे लोगों की वफादारियाँ बदलनी हैं, उस सब के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए। और ये पैसा जो है ना 20 से 25 बिलियन डॉलर, उसका अगर 10% भी आप इस काम पे लगाते हैं तो आप समझें कि 2-2.5 बिलियन डॉलर वो इस काम पे दरमियान से खींच लेंगे। ठीक है, तो ये उस लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जहाँ तक जंग का मामला है, मैं नहीं समझता कि 2-3 महीनों के अंदर जंग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे तजियाकार ये कह रहे हैं कि वो इतनी तैयारी कर चुका है कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर उसने जंग ठोक देनी। इतनी जल्दी इंडिया नहीं करेगा, उसे टाइम चाहिए, और ये जो टाइम है ये मेरा ख्याल है 2027 में आएगा। तो अभी 1.5 साल जो है मुझे नहीं लगता कि जंग होगी, लेकिन 2027 में शोर छाट होगी। लेकिन जो साहब पाकिस्तान की तैयारी भी तो उतनी ही होगी ना, इंडिया को ये भी तो पता होगा कि इस दफा जंग हुई तो फिर नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, और मोदी आपके ख्याल में उसके बावजूद ये स्टेप ले सकता है? मेरा ख्याल 2027 में लेगा वो। 2027 में उसकी कई वजूहत हैं। एक तो उसे पाकिस्तान के बराबर आने में तकरीबन 1.5 साल लगेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया उसको अंदाजा हुआ है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, और उसका मुकाबला करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, तो उनको तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि ज्योतिषियों ने कहा हुआ है कि 2027
2027 जो है वो इंडिया के लिए बड़ा अच्छा है, और अभी जो 1.5 साल है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है, तो हमें पंगेबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। तो इल्म ज्योतिष भी ये कह रहा है। तीसरा ये है कि उस वक्त इलेक्शन के करीब पहुंच जाएगा मोदी, और मोदी ने ताहयात प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उसको एक फिर ट्रॉफी चाहिए, तो वो ट्रॉफी जो है वो उस वक्त ही उसको मिल सकती है या बकौल उसके। तो वो अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के ऊपर प्रवेल कर जाता है, जो मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर वो समझता है तो फौरी तौर पे वो आगे इलेक्शन में चले जाएं, तो उसका उनको फायदा होगा। तो 2027 जो है वो होगा। लेकिन अब इंडिया के अंदर वैसे डिबेट बड़ी चल रही है, जैसे कि पिछले दिनों उनके जो जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान साहब, उन्होंने कह दिया था कि जो जहाज मैटर नहीं करते, फतह मैटर करती है। लेकिन साथ ही लोग कह रहे हैं जहाज गिरे ये मैटर नहीं करता, कैसे गिरे ये मैटर करता है, था करके गिरे मतलब क्या था और कैसे गिरते हैं। नहीं, आपको तो वैसे सबके साथ ही इख्तिलाफ है। नहीं, इंडियंस तो अच्छा साहब मैं देखा था शिव कुमार नेवी का कैप्टन है, इंडोनेशिया में डिफेंस अटैची है, उसने कहा जी हमें तो इजाज़त ही नहीं थी कि आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना। तो भाई कैसे इजाज़त ली जाती है? वो तो मोदी साहब बार बार कह रहे थे, वो उतने उनका नेता जो है ना, लीडर हैं, उनकी इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया ने प्ले करना शुरू कर दिया कि यार ये इजाज़त नहीं होती, तो और किस किस्म की इजाज़त? मोदी साहब कह रहे हैं मैंने सेना को खुली इजाज़त दी, और सेना की मर्जी ये थी कि हमने गिरना है, वो गिर गया। लेकिन इसमें ना जो एक चीज़ है, वैसे अब ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर करने लगा, ठीक है, वो ये है कि पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि खुली जंग हो, लिहाजा इन्होंने भी उनके बहुत ज़्यादा हथियारों के ऊपर अटैक नहीं किया, सिर्फ 5 हथियारे 6 हथियारे गिरा के पाकिस्तान के सामने था कि अगर वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम पूरे को उड़ाना चाहता, सारे के सारे उनके वो उड़ा देता हथियारे, राफेल भी ख़त्म कर देता, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। सेम इस तरह इंडिया जो था ना, वो भी नहीं चाहता था, इंडियन एयरफोर्स भी नहीं चाहती थी कि फुल फ्लैज जंग हो, तो उसने भी पाकिस्तान को लेवरेज दिया। ये एक रियलिटी है जिसको मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि इंडियन फौज जो थे वो भी नहीं चाहती थी फुल फ्लैज जंग हो, उसको पता है कि इसका नतीजा क्या होगा। पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि फुल फ्लैज जंग हो, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता था इसका नतीजा क्या, और उसकी बुनियादी वजह ये दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, और जितनी ज़्यादा इस टाइप की सूरत होती है उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी भी होती है। तो पाकिस्तानी फौज भी जिम्मेदार है और इंडियन फौज भी इस चीज़ का एहसास करती है। बाकी पॉलिटिकल मसाइल है, इसमें कोई मोदी को इस चीज़ का अंदाजा नहीं है। ठीक है, ठीक है। और जो साहब 2027 में आप कह रहे हैं कि इस तरह का मामला हो सकता है, मतलब 1.5 साल अब सिर्फ गौ मूत्र पे गुजारा करना पड़ेगा। फिर वही आपने कहा था, मैंने कहा डाल देते हैं गौ मूत्र पर, ठीक है, 1.5 साल तक पिएगा, गम बुलाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी पीटीआई के हवाले से। पीटीआई की सियासत भी इस तरह लगता है कि जैसे कुछ जवाल पजीर होती जा रही है। खान साहब कुछ और कह रहे हैं, पार्टी कुछ और कह रही है, बहनें कुछ और कह रही हैं, और अजीब गरीब किस्म के वो सजेशंस भी उनकी पार्टी में आने शुरू हो गए हैं। अब पार्टी के साइड पे बैठने जा रही है, एक बहुत बड़ी उन्होंने कॉल दे दी है। कॉल यकीनन हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इस टॉपिक में जानते हैं कि क्या वाकई इमरान खान साहब इस वक्त गवर्नमेंट को कोई डंड डालने की पोजीशन में है, या जो वो कह रहे हैं वो कर पाएंगे? अब देखिए, इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, और जिसके ऊपर वो तवज्जो से गौर से देख रहे हैं उसको, और वो फैसला कर रहे हैं, वो ये है कि एक ऐसी तहरीक चलाई जाए जिसे लीड उनकी बहनें करें। और इस बात पे वो गौर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी पार्टी इस्तेमाल करके देख ली है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होने के बावजूद, गंडापुर होने के बावजूद कोई खास काम नहीं हो सका। इवन गंडापुर साहब की तो अब शक्ल भी इमरान खान साहब नहीं देखना चाहते, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। दूसरी जो उनकी वकला की पूरी क़यादत है, जो उसको इसलिए रखा गया था कि वो अदालतों के अंदर डिफेंड कर सकें और सड़कों के ऊपर भी डिफेंड कर सकें, वो सारे के सारे जो हैं बिल्कुल चुप करके सुम्ब बुकपन एक साइड पे बैठ के अपने बस्ते उठा के, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने जजों के साथ बहुत ज़्यादा जंग लड़ रही तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम अपनी प्रैक्टिस से फारिग हो जाएंगे। तो वो भी 2 नंबरी कर रहे हैं, और साथ साथ गवर्नमेंट के साथ उनके राब्ते भी बड़े अच्छे हैं। तीसरा जो वर्कर्स था, वो वर्कर चाहे 9 मई के बाद उसका बेड़ा गर्क हो गया, वो तो बिल्कुल डर के सहम के अपने घरों में बैठ गया। तो इमरान खान साहब ने जितना जोर लगाना था उन्होंने लगा दिया। सोशल मीडिया वैसे उनका उड़ गया, अब वो बिल्कुल ना होने के बराबर है आपके सामने। इमरान खान साहब की ट्वीट आती है, उसको शेयर करने वाले लोग भी कम होते चले जा रहे हैं। तो जो एंकर्स हैं उनके, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। तो वो जो सारा मैदान है वो खाली हो गया। तो अब इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक कार्ड है जो उन्होंने अब तक इस्तेमाल नहीं किया, और वो कार्ड ये है कि अपनी बहनों को कहें कि वो क़यादत करें और वो पार्टी को लें। लेकिन अब इशू ये है कि बहनों और पार्टी के दरमियान इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी उनके साथ चल सकेगी। हो सकता है बहनें जब निकलें तो आप जनरल पब्लिक को बाहर निकलता हुआ देखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनरल पब्लिक भी अब निकलेगी। 10 मई ने पाकिस्तान का सिनेरियो बदल दिया हुआ है। इस सिनेरियो के अंदर कोई शख्स भी फौज के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ खड़ा होना चाहती है। गवर्नमेंट को तो उनके नज़र में मैटर ही नहीं करती, वो उसको घास ही नहीं डालते, तो वो कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दरारें, जो लाहौर के अंदर जो लेटर निकला है ना, जो उन्होंने एक ओपन लेटर लिख दिया कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी साहब ने, महमूद रशीद साहब ने, यास्मीन राशिद ने, उमर सरफराज चीमा ने, उसने मेरा ख्याल ज़्यादा दरार डाल दी। और अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो हो सकता है वो 5 लोग मुज़ाकरात कर लें। अच्छा, पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े धड़े ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए, और वो खबर जब आएगी ना, तो इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टांगें काम जाएंगे, क्योंकि आप उनको डिसोन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़े किरदार वाले लोग हैं। वो अभी तक खड़े हुए हैं, उनमें से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी कोई ने कोई लिफा नहीं, कोई डरा नहीं। तो वो लोग अगर खड़े हो जाते हैं या मुज़ाकरा स्टार्ट कर देते हैं, तो खुद अंदाज़ा लगाओ कि कितना एम्बैरसमेंट होगी इन सब पूरी पार्टी के लिए। तो 2 चीज़ें हैं जो मैं आज के व्लॉग में आपको बता रहा हूँ। एक तो ये है कि ये तहरीक चलेगी नहीं, और अगर चली तो बहनें लीड करेंगी। और दूसरा ये है कि मुझे लगता है
کہ جو پارٹی کے 5 لوگ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مذاکرات اسٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور خان صاحب ان کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں، خان صاحب شروع میں ظاہر ڈسٹینس پہ رہیں گے، لیکن الٹیمیٹلی خان صاحب کو ماننا پڑے گا. لیکن دوسرے جو پارٹی کے دوسرے لوگ ہیں جو بینیفیشری ہیں وہ ان کے ساتھ بڑے لڑیں گے کہ ہوتے کون ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں جی. بہت انپورٹنٹ ٹاپک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا میں صرف ایک ہی انسان سمجھ سکتا ہے اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ خود. اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہے گا کیا کرے گا. اپنے بہترین دوست کو انہوں نے ڈیپورٹ کرنے کا کہہ دیا ہے. یہ سٹوری کیا ہے جانتے ہیں تفصیل سے. اب ایلان مسک ہے. ایلان مسک کا پرابلم یہ ہے کہ یہ بڑا تگڑا آدمی ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، کوئی $500 بلین کی کمپنی ہے اس کی. اور ویسے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اسکیم ہے، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے. مثلا مریخ جو ہے نا وہ ظاہر زمین کے بڑا قریب ہے، ہاں جی، انتہائی قریب اسٹار ہے جس کو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کا فاصلہ بھی نا بہت زیادہ، اتنا زیادہ فاصلہ ہے دنیا سے. یہاں سے ہم نے شٹل بھیجی ہے مریخ کے. اب یہ جو سب سے زیادہ تیز گاڑی ہے وہ دنیا کے اندر وہ خلائی شٹل ہے، اور وہ 1 منٹ میں 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اتنی سپیڈ سے چلتی ہے. اور وہ جو ہے 7 مہینوں میں گاڑی جو ہے وہاں مریخ پہ اتری ہے. تو ایک ایسی مشین جو انتہائی تیز ہے وہ بھی اگر مریخ پہ اترنے کے لیے 7 مہینے لیتی ہے، اور اگر ہیومنس کو یا کسی اور جاندار کو اگر اس کیپسول میں ڈالا جائے تو 7 مہینے سروائیو نہیں کر سکتا اس کے اندر. اور اس سے زیادہ سپیڈ 10.5 ممکن نہیں ہو سکتا. فیوچر میں کبھی کوئی سپیڈ بن جائے. اور اس زمین کے اوپر جہاں ایک گاڑی صرف اتری ہے اور وہ بھی کسی جاندار کو لے کے وہاں نہیں جا سکی اور اسے بھی 7 مہینے لگے ہیں مسلسل، وہاں پہ ایلان مسک باقاعدہ آبادیاں آباد کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں. تو خود اندازہ لگاؤ کتنے سال، اگر یہ ممکن بھی ہو جائے تو 100-150 سال تو لگ جائے گا. یہ چلے 50 سال لگ جائے. ایلان مسک صاحب کہاں ہوں گے اس وقت؟ تو یہ بہت بڑا اسکیم ہے اگر آپ تھوڑا سا ڈفرنٹ اینگل سے دیکھو اس بات آپ کی ٹھیک ہے. اور بڑے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھرتی ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی وہاں پہ اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں اور وہ گاڑیاں بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وغیرہ. بہرحال ایلان مسک صاحب جو تھے ساؤتھ افریقہ کے اندر پیدا ہوئے تھے. ایلان مسک اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ نہ کرتا، ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پریزیڈنٹ نہیں ہونا تھا. اس نے ایکس کا الگورتھم بدلا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور سوئنگ اسٹیٹس کے اندر اس نے بندے نے بڑا کام کیا. اس نے کوئی $1 ملین وہاں پہ لگائے، میرا خیال $150 ملین تو اس نے وہاں پہ پھینکے، اور وہاں اس نے ہیوج انویسٹمنٹ کی، ہیوج اس نے وہاں پہ ایفرٹ کیا. اور اس کے بعد ایلان مسک کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جیتا. لیکن اس کے بعد اختلاف پیدا ہو گئے. اب ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو جو ہے ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے ساؤتھ افریقہ، کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں سے یہاں واپس یہاں آئے امریکہ میں. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بڑا پرابلم بنے گا، یہ بڑا ایشو بنے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکٹرک گاڑیوں کا ایک بل ہے جو گورنمنٹ وہاں پہ سبسڈی جو ہے اس کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وڈرا کرنا چاہتے ہیں اسی بندے کے لیے. اس کے اوپر اس کو اختلاف ہے اور وہ ایکس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے حق میں. تو ایلان مسک کے خلاف جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ چل پڑا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، پتہ چلے کہ رات کے وقت یہ فیصلہ کہ صبح کہ ایلان مسک میرا دوست. مجھے تو لگتا ہے چور صاحب پہلے وہ مارتا ہے، جان بوجھ کے پریشر ڈالتا ہے کہ آگے والا جھک جائے تو ٹھیک ہے، نہیں جھکتا تو بعض اوقات اس کے بیانات چینج ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے وہی ہو. آخری ٹاپک ہمارا جی سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جی، ترکیہ کے اندر ایک واقعہ ہوا. یہ واقعہ بہت ہی تکلیف دیتا، لیکن فوراً اس کے اوپر گرفتاریاں ہو گئی. ایک اچھا پریزیڈنٹ سیٹ ہوا. یہ پوری ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو جاوید چودھری. اب وہی جو گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں دنیا کے اندر مختلف ملکوں میں، ترکیہ کے اندر بھی ہو گیا. ایک ہفتہ روزہ ہے اس کے اندر 2 خاکے بنا دیے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی شبیہ دی گئی، جو ظاہر آبجیکشنیبل ہے، مسلمان کبھی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ بھی وہ اسی ٹائپ کی بیماری جو پیدا ہوگی جو یورپ کے اندر ہوتی تھی یا سویڈن کے اندر یا ناروے کے اندر جو عورتیں کی جاتی تھیں. اب اس کے اوپر گورنمنٹ ایکٹیو ہو گئی اور انہوں نے 2 ایڈیٹرز ہیں ان کو گرفتار کر لیا، کارٹونسٹ کو گرفتار کر لیا، 2 مینیجنگ ایڈیٹر ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا. 26 جون کو یہ خاکے پبلش ہوئے اور بہت زیادہ وہاں پہ لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے حملہ بھی کیا. تو اب گورنمنٹ نے اچھا کیا ہے کہ انہوں نے اس کو گرفتار کر کے اب ان کو سزا دیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن اب یہ جو خوفناک قسم کی چیز ہے اب یہ اسلامی ملکوں کے اندر بھی آنی شروع ہو گئی، جو زیادہ الارمنگ ہے. اس سے پہلے یہ اسلامی ملکوں کے اندر یہ واقعہ نہیں ہوتا تھا. تو ٹرکی پہلا اسلامی ملک ہے جس کے اندر اس قسم کے خاکے چھپے ہیں. لیکن یہ ہے کہ گرفتاریاں ہوئیں، یہ بہت جلدی ایکشن ہوا اور یہ بہت اچھا ہوا. تو ناظرین آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، یقیناً بہت